Very good morning, dear students. Today we are starting our chapter, The Age of Industrialization. There are 4 chapters in your history. 2 we have completed, and this one is the third one, The Age of Industrialization. Now in this chapter, we will see how industrialization took place and what is the meaning of industrialization for the different section of the society. Okay, these things we will see. Then the big thing we will see in this chapter is we will see industrialization from the way, or we can say in the 2 contexts. First one, the industrialization with respect to European countries, or we can say Western countries, and on the another context we will see the system of industrialization in the context of India. Okay, तो हम अलग अलग तरह से देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में कैसे हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे हुआ. बिफोर दैट we will also see about proto-industrialization, life of workers, situation of workers, how industrialization affected the Indian industries, okay, and what was the condition. All these things we will study in detail, okay. But today we will just study about the introduction part of the lesson, that is the very initial part of the lesson, or first three pages or 4 pages we will discuss today. So the first one is, this chapter in your book starts with 2 images, okay, and we can't say that question from these introduction part or images cannot come. Obvious questions from these things can come. So you should be very clear about what the picture is explained to you. Okay, 2 pictures हैं आपके lesson start होता है तभी, और दोनों को ही बहुत अच्छे से इन्होंने explain भी किया है, तो chances हैं question आने के. Okay, so let's start. So the first painting they have given to us in this chapter is Dawn of the Century, and it was published by E.T. Paul, and this person was a popular music publisher. Okay, काफी अच्छे ये म्यूजिक पब्लिशर थे, काफी फेमस, और इस पिक्चर का नेम है Dawn of the Century, और पब्लिश किसने किया है? E.T. Paul, who was a popular music publisher. अब उन्होंने क्या किया था, एक बुक उन्होंने म्यूजिक बुक प्रोड्यूस की थी. ओके, ये जो पब्लिशर है इन्होंने म्यूजिक बुक प्रोड्यूस की, और उनके कवर पेज जो था म्यूजिक बुक का, उस पेज पे इन्होंने ये पेंटिंग को बनाया या फिर यूज किया, हम बोल सकते हैं. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कवर पेज या फिर ये पब्लिश्ड पेज जो यूज किया E.T. पॉल ने अपने म्यूजिक बुक पर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी वेरी क्लियर विद द मीनिंग. डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल जो एकदम से सुबह होती है ना, अर्ली मॉर्निंग को हम बोल देते हैं डॉन. तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पिक्चर? जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपनी बुक सामने रखना और उस पिक्चर को ठीक से देखना. व्हाट यू विल सी कि पिक्चर के सेंटर में गॉडेस लाइक फिगर है, ठीक है, देवी की तरह एक फिगर है, एंड शी इज द एंजल ऑफ प्रोग्रेस. वो एक एंजल है प्रोग्रेस की, और उनके हाथ में क्या है? फ्लैग है. ओके, शी इज हैविंग फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी. जब आप बुक में देखेंगे पिक्चर, यू कैन सी दीज थिंग्स. और other than this, she is perched on a wheel with wings. अब वो क्या है? जब वो इमेज मतलब गॉडेस जो है वो एक व्हील के ऊपर एक स्टैंडिंग पोजीशन पे है, और वो व्हील क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, और उस व्हील के क्या है? विंग्स भी हैं, और वो सिंबलाइज कर रहा है, यानी व्हील सिंबलाइज कर रहा है किसको? टाइम को. ओके, एंड the complete image is the sign of progress, we can say, and progress in which sectors? In railways, in the camera making, machine making, printing press, and
factories, because during that time these were the major sectors where progress was there. So once again I am repeating, we have talked about the first image or picture given in your book. This name of the image is Dawn of the Century. Dawn means early morning, and it is published by E.T. Paul, who was a popular music publisher. And on his music book, the cover page he used, that was the cover page or image given in your book, Dawn of the Century. Now, what this image or print used by the E.T. Paul on his music book cover page represent? It was representing goddess, which was angel of progress, and she was bearing a flag of new century, and she was perched on a wheel with wings that symbolizes time. So the complete image was a sign of progress in the field of railways, camera machines, printing press and factory. This we have talked about the first image. Now we will talk about the next image given in your book, and this was the image of a trade magazine. Trade magazine में over 100 years ago इस second image को use किया गया. And what the second image shows? Second image क्या show कर रही है आपको? Two magicians show कर रही है. Magicians show कर रही है. दो आपको जादूगर दिखाए जा रहे हैं सेकेंड इमेज में. फर्स्ट इमेज में अलादीन का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. टॉप की तरफ अगर आप देखेंगे, एक ही इमेज में टॉप की तरफ अगर आप देखेंगे तो अलादीन इज रिप्रेजेंटेड ओरिएंट साइड से, और वो क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल पैलेसेस बना रहा है. किसकी हेल्प से? मैजिक लैम्प जो है उसके पास, उसके हेल्प से. अलादीन की आपने स्टोरीज भी पढ़े होंगे, सीरियल्स में भी देखा होगा. ओके, सो जो इमेज है सेकंड, उसके टॉप में अलादीन है, वो ओरिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओरिएंट मतलब जो वर्ल्ड मैप में जब आप देखोगे जो ईस्टर्न साइड की कंट्रीज हैं उनको यूज किया गया है. और वो क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल पैलेसेस बना रहा है. किससे? म्यूजिकल लैम्प से. तो अलादीन या फिर ये टॉप पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, जैसे इंडिया हो गए या बाकी जो ईस्टर्न पार्ट में जो कंट्रीज है ये सभी. अब बात करते हैं बॉटम की तरफ. तो बॉटम की तरफ क्या है? मॉडर्न मैकेनिक है विद हिज मॉडर्न टूल्स एंड वीव्स अ न्यू मैजिक. दूसरी तरफ क्या है? मॉडर्न मैकेनिक दिखाया हुआ है इमेज में, और उसके पास उसके मॉडर्न टूल्स है, और वो क्या बना रहा है? अपने मॉडर्न टूल से नया मैजिक क्रिएट कर रहा है. किस तरीके से क्रिएट कर रहा है? बाय बिल्डिंग ब्रिजेस, शिप्स, टावर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स. ओके, so these things we have seen. And here Aladdin stands for the represents the eastern countries, and mechanic stands for west and modernity, and represents this bottom image represents the western countries. This should be very clear to you. Other than this, the various questions are given after this explanation, and we will get answers of all the questions after studying the complete lesson. Like modern world जो था वो किससे एसोसिएटेड था? विद द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज. अदर देन इनोवेशंस, मशीन्स, फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड स्टीमशिप्स, इन सब के बारे में. जैसे मॉडर्न वर्ल्ड किन किन चीजों से एसोसिएटेड था? भाई रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज होने लगा, इनोवेशंस होने लगे, ओके, एंड मशीन्स वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होने लगी, रेलवेज सेटअप हुए, स्टीमशिप्स बनने लगी. सो modern world is related or associated with these all kinds of development. And if we talk about history of development, it is simply the story of development only. कैसे जो history हुई development की, वो क्या एक story है development की. And in this chapter mainly we will study development in the field of industrialization with context to Britain, which was the first industrial nation. सबसे पहले वहां पर क्या हुआ? industrialization हुआ. So we can say Britain was the first industrialized or industrial nation. And other various questions like, was it a rapid technological development, or what is meant by industrialization,
and how the factories and railways set up and high-rises buildings and bridges were the sign of development. All these answers we will get in the few next subtopics of the lesson. I hope whatever we have discussed here, we have only discussed the introduction part of the lesson where the two images are discussed. Okay, first one is dawn of the century and the second, two magicians are represented in the image, one at the top side and another one at the bottom side. क्वेश्चन अब कैसे आ सकता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा नेम द कवर पेज और इमेज पब्लिश्ड बाय E.T. पॉल, हु वाज E.T. पॉल करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, व्हाट वाज रिप्रेजेंटेड बाय हिज इमेज, तो आपको पता होना चाहिए व्हील क्या सिंबलाइज कर रहा था, टाइम को सिंबलाइज कर रहा था, कंप्लीट इमेज क्या शो कर रही थी, साइन ऑफ प्रोग्रेस शो कर रही थी. ओके, दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू स्टडी. अदर देन दिस, अब इसमें से क्या पूछ लिया जाएगा कि जो टू मैजिशियंस थे, तो जो बॉटम पे था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, देन यू विल राइट वेस्ट एंड मॉडर्निटी. और अगर पूछ लिया जाए टॉप पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था ईस्टर्न कंट्रीज को. और यहाँ इस इमेज में ये माना जा रहा था कि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, those were lagging behind the वेस्टर्न कंट्रीज. वहां पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम है या फिर नहीं है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कंट्रीज. वेस्टर्न ये माना जा रहा था इस इमेज के थ्रू, या ये शो किया जा रहा है इस इमेज के थ्रू कि वेस्टर्न कंट्रीज आर मच मोर एडवांस एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कंट्रीज. क्योंकि वहां पर यहाँ पर तो सिर्फ किस्से कहानियों पे, ईस्टर्न कंट्रीज में किस्से कहानियों पर लोग बिलीव कर रहे हैं, अलादीन के पास, जादू वगैरह जैसी चीजों के पास. एंड एक्चुअल में एक्शन में, या फिर हम कहें एक्चुअल में एक्शंस या जादू कौन लेकर आ रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो मॉडर्न मैकेनिक्स है वो अपने टूल्स एंड टेक्निक से एक्चुअल में मैजिक क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज शोन बाय दिस इमेज. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the period of proto-industrialization, or we can say the subtopic before the industrial revolution. These things we will see now. So आपका एक first subtopic है before the industrial revolution. ओके, इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. देखो, अगर हम सिंपली बात करते हैं, आप क्या समझते हो, फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है. सो अगर हम सिंपली समझें, हम अगर एसोसिएट करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है भाई, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्री और इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ग्रोथ ऑफ मोर एंड मोर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज. और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन की. वी कैन से व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल workers, it means we are also talking about factory workers. हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. उसमें हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, या फिर एसोसिएट करते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से. अगर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, मीन्स फैक्ट्री प्रोडक्शन. अगर बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, मीन्स फैक्ट्री वर्कर्स. ओके, सो जो हिस्ट्री थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, दैट बिगिन विद द सेटअप ऑफ और विद द सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट फैक्ट्रीज. तो आपको समझना होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी से शुरू हो गया था जब छोटे छोटे वर्कशॉप्स या फिर कारखाने वगैरह लगे थे, यानी कि फैक्ट्री के एस्टैब्लिश होते ही क्या शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया.
तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज बिफोर इट वॉज नोटिस्ड, जब इसको नोटिस किया गया उससे पहले ही एग्जिस्टेंस में क्या था, फैक्ट्री सेटअप या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन था। और बाद में जब कुछ ऑथर्स ने या राइटर्स ने, ठीक है, इन पर अटेंशन पे किया, या तो कुछ हिस्टोरियंस ने जब इन पर अटेंशन पे किया तो उन्होंने इस पीरियड को, जिस पीरियड में ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप था, उस फेज को क्या बोल दिया गया, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंपली अगर हम बात करें कि इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगिन टू dot the landscape in England and Europe, there was large scale industrial production for international market. जब फैक्ट्रीज आई यूरोप में, इंग्लैंड में, उससे पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन वहां पर हो रहा था, एंड दैट फेज was known as प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपको मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग और डेफिनेशन आपको दोनों चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि बार बार जब मैं बोलूं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपको ये सोचना ना पड़े कि व्हाट वाज दैट, क्योंकि बार बार आगे ये टर्म यूज होने वाला है। लेट्स एक बार मैं और रिवाइज करा देती हूँ आपको कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ द लेसन बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उससे पहले क्या सिचुएशन थी, अब हम इसमें टॉपिक में ये देख रहे हैं एट प्रेजेंट। तो इसमें सबसे पहले एक टर्म क्लियर होना चाहिए हमें, दैट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर बोला जाए, ठीक है। तो वो क्या था, जब इंग्लैंड में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में फैक्ट्रीज सेटअप नहीं हुई थी, जब इंग्लैंड में या अदर यूरोपियन कंट्रीज में फैक्ट्रीज सेटअप नहीं हुई थी, तब भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था फॉर मीटिंग व्हाट, फॉर मीटिंग द डिमांड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, एंड दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। और फैक्ट्रीज पर नहीं सिर्फ बेस्ड थे, छोटे छोटे वर्कशॉप्स में काम होता था, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। Such type of things were going on before the setup of factories and industries. And that period, जब existence में नहीं थी factories industry, तब भी large scale production हो रहा था for meeting the world demand और international market. Okay, so that period is known as pro-industrialization or proto-industrialization. Now we will see what happened in the 17th and 18th century. थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे और इसमें हम देखेंगे 17